پہ ظلم کی انتہا کر دیں گے، جب بولنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، جب آپ صرف ایک سائیڈ کو پروموٹ کریں گے، آپ حکومت میں بھی ہیں تو آپ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ اب آپ نے نا گھر جا کے ایک دفعہ نا گجرات کے مسلمانوں کا ریئیکشن اباؤٹ پی ایم مودی سرچ کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ گجرات کے مسلمان مودی صاحب کو باپ کی طرح پیار کرتے ہیں. جی چھوٹی، جب لوگ مجھے کہتے تھے، میں نے اس کو سرچ کیا ہے کہ ان کے تو خیالات مودی صاحب کو لے کے بڑے برائٹ ہیں. بیسیکلی انڈین پرائم منسٹر ہے وہ اپنی ایک تو قوم کے ساتھ مخلص ہے، ہمارے والے جو بھی بیٹھے ہیں وہ چور ہیں، آرڈر چلاتے ہیں. آرڈر چلاتے ہیں. اور دوسرا جو انڈین پرائم منسٹر ہے وہ اپنے بلبوتے پہ کرتا ہے، اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، لیکن ہمارے ادھر جو پرائم منسٹر کوئی اور ہے اور فیصلہ کوئی اور کرتا ہے. اچھا بات ایسی ہے نا کہ جہاں تک مودی کی لیڈرشپ کی بات ہے تو مودی نے ویسے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے. ٹھیک ہو گیا. جس طرح پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے انڈیا کو مطلب نیچے سے اوپر لے کے آئے ہیں، گرو کیا انڈیا، مانتے ہیں. جہاں تک ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق کی بات ہے تو یہ تو ایک روایتی وہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہے روایتی طور پر وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں. صحیح ہو گیا. ویسے یہ بہت غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کہ جیسے آپ نے یہ بات کی ہے کہ اگر دور سے ان کو دیکھیں تو وہ ایک عظیم شخصیت لگتی ہے، پیار کرنے والے. ٹھیک ہے، میں بلکہ یہ کہتا ہوں نزدیک سے بھی دیکھیں تو وہ پیار کرنے والے لگتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا عزت کریں گے تو عزت کروائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو کوئی بینیفٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کو بھی بینیفٹ دیں گے. اگر آپ ان کی عزت کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کی بھی کریں گے، بے شک آپ دور ہیں، بے شک آپ پاس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کے اگینسٹ چلتے ہیں، پھر آپ بے شک دور ہیں، بے شک نزدیک ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، گھس کے مارنے والا، وہ گھس کے ماریں گے. جس طریقے سے انڈیا کی کرکٹ ٹیم بلا کے بھی مارتی ہے، جا کے بھی مارتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم ان کی سیکورٹی کی بات کریں، سیفٹی کی بات کریں، تو وہ صرف مودی جی نہیں بلکہ کوئی بھی ہے، آپ ان کے اگینسٹ چلیں گے تو وہ آپ کو پورا جواب دیں گے. انڈیا جواب دیتا ہے، اور وہ اس کے حقدار بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور انڈیا کے پاس اس وقت ویسے بھی ایسی پاور ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہے، ان کی ماشاءاللہ ہر چیز وہ اپنی ہی کنٹری میں پیدا کر رہے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر کنٹری سے وہ لڑکی. اگر ہم لوگ بات کریں نا تو وہ پاکستان کی جو قوم ہے یا ہمارے لیے تو وہ ہمیشہ سے ہٹلر رہا بھائی. اچھا، مطلب جب بھائی بات آتی نا انڈیا کی عزت پہ تو بھائی وہ ادھر نہیں کسی کو ہاتھ ڈالنے دیتا. ٹھیک ہے، تو باقی بات کرے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس نے بولا کہ پاکستان کے اگر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہماری اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو بتاؤ. بھائی اس کو ہیلپ چاہیے ہی نہیں، وہ کم ہے کیا کسی سے؟ اچھا بتائے نا. ابھی نندن کا پتا تھا نا جو جب چائے پلائی تھی اس کو، تو وہ پھر واپس بھی ہم لوگ یہ کہہ کے ان کو ٹال مٹول کر دیتے کہ بھائی صاحب کہ ہم نے جی چائے کہو اور آگے گزر جاؤ. میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ون اینڈ اونلی نائلہ پاکستانی ریئیکشن. آج ہم بات کریں گے مودی صاحب کی لیڈرشپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ جو ہے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا، کہا کہ مودی صاحب کی پرسنالٹی دور سے دیکھے تو باپ جیسی ہے، اور اگر انڈیا کی سیفٹی اور انٹرسٹ کی بات کی جائے تو وہ کلر بن جاتے ہیں. انہوں نے یہ بات پاکستان کے حوالے سے کی کہ ہم نے جب انہیں کہا کہ ایک کنٹری آپ کو بہت پریشان کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ڈیل کر لوں گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ریمارکس ہیں مودی صاحب کے لیے کہ اگر وہ بہت سافٹ ہیں لیکن انڈیا کی بات آ جاتی ہے تو کلر بن جاتے ہیں. ہے گائس، کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، سوست ہوں گے، مست ہوں گے. یار رکو، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور ہم بیچ میں آ کے آپ ویڈیو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، مگر یار 20 سیکنڈ کا ہم ٹائم آپ سے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا ویلیو ایڈ کرنا پڑتا ہے ویڈیو میں. ویڈیو بہت ہی کمال کا ہونے والا ہے. اگر چینل پہ نئے ہو تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے کمال کے ویڈیو لاتے رہتے ہیں. آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ جی نے مودی جی کی تعریف کی. انہوں نے بولا کہ مودی جی اپنی جنتا کو بیٹے کے سامان مانتے ہیں. اسی حوالے پہ آج ہم ویڈیو پاکستان کے نائلہ علی خان جی کا دیکھنے والے ہیں. اوریجنل ویڈیو اگر آپ کو دیکھنا تو ویڈیو کا لنک نیچے ڈال دوں گا، جا کے دیکھ سکتے ہو. ہم ملیں گے ویڈیو کے لاسٹ میں، تب تک آپ لوگ ویڈیو کا مزہ لیجئے. کنٹری کو چلانے کے لیے یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کے لیے کسی دوسرے کنٹری کی ضرورت تو پڑتی ہے آپ کو. جس طرح سے پاکستان کے اور انڈیا کے معاملات چل رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے ریلیشن ہے، وہ اگر کوئی تھرڈ پرسن نہ ہوگا تو اس کے علاوہ ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی. ہم نے یو اے کو بہت دفعہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی بات کروا دے، لیکن کوئی بھی کنٹری جو ہے انڈیا کو منا نہیں پا رہی. جی بالکل، دیکھیں لچک دونوں سائیڈوں سے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف انڈیا کی طرف سے ہی ہے، پاکستان کی طرف سے بھی وہ والی لچک نہیں دکھائی جا رہی کہ ریلیشن بہتر ہو. ہاں، ہمارا وہ ہے ایک دن کہتے ہیں ہمیں انڈیا سے دوستی کرنی ہے، اگلے دن ہم کہتے ہیں ہمیں جنگ کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. شاید ہمارا کہیں نہ کہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آتا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیشن بہتر نہیں کرنا چاہتے. تو ڈونلڈ ٹرمپ مودی صاحب کی لیڈرشپ کی تعریف کرے کہ قوم کے لیے باپ جیسے ہیں اور دشمنوں کے لیے کلر جیسے.
कैसे? देखें, कौम के लिए नहीं, अगर आप हिंदुइज्म के लिए गए तो वो बेहतर है, क्योंकि गुजरात में का कसाई जो मोदी साहब के लिए मशहूर है हाँ। कि मुसलमानों का कत्लेआम जिस तरह उन्होंने किया है, या लेकिन लोग कहते हैं फिर गुजरात में उस दंगे के बाद फिर कोई दंगा भी नहीं हुआ, गुजरात ने सबसे तेजी से तरक्की की। देखें, जब आप एक जगह पे जुल्म की इंतहा कर देंगे, जब बोलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, जब आप सिर्फ एक साइड को प्रमोट करेंगे, आप हुकूमत में भी हैं तो आप किस तरह से बात सर कर अब सकते हैं? आपने ना घर जाके एक दफा ना गुजरात के मुसलमानों का रिएक्शन अबाउट पीएम मोदी सर्च करना है, मैं और आपने देखना है कि गुजरात के मुसलमान मोदी साहब को बाप की तरह प्यार करते हैं। जी, ये छोटी- चीज़ जब लोग मुझे कहते थे, मैंने इसको सर्च किया है कि उनके तो ख्यालात, इंडिया कहता है पाकिस्तान से दोस्ती डेफिनेटली करते हैं, कश्मीर का मुद्दा इग्नोर करो, जो पाकिस्तान बात ही इंडिया से कश्मीर से स्टार्ट करता है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, हाँ। स्पेशली अगर यूनाइटेड नेशन को देखा जाए तो उनको इंटरफेयर करना चाहिए, वहाँ पे उनको अपनी फोर्स भेज के एक पुरअमन तरीके से रेफरेंडम करनी चाहिए उनको। इंडिया खुद ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, वो यूनाइटेड नेशन को कुछ भी नहीं समझता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समझेगी, क्यों नहीं समझेगी? अगर मुस्लिम वर्ल्ड एक्शन ले इस पे। चले कश्मीर का मुद्दा छोड़ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान देखिए। बात यह है कि जैसे आपने ये बात की है कि अगर दूर से उनको देखें तो वो एक अजीम शख्सियत लगती है, प्यार करने वाले, ठीक है। मैं बल्कि ये कहता हूँ नजदीक से भी देखें तो वो प्यार करने वाले लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे, ठीक है। अगर आप उनको कोई बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे, अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं तो वो आपकी भी करेंगे, बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। घुस के मारने वाला, वो घुस के मारेंगे, जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा जवाब देंगे, इंडिया जवाब देता है, और वो उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं, तो इसलिए लेकिन लड़ते नहीं है, कह रहे कि पहला एग्रेशन हमारी तरफ से नहीं बिल्कुल होगा। ऐसे देखें, उन्होंने हमेशा तरक्की की ही इस वजह से है, उन्होंने जंगें नहीं लड़ी है, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए तजारत करना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में भी गए हैं, पहले उन्होंने अपनी पब्लिक की जो है सेफ्टी और केयर सामने रखी है। देखिए जैसे पीछे भी थोड़े दिनों पहले मोदी का जो बयान आया था कि हमारे जो एंटीक पीस है, जो मूर्ति हैं, उनको रिटर्न किया जाए, ठीक है। तो वो क्या, उसमें मोदी जी का कोई फायदा नहीं था, अपनी पब्लिक के लिए किया था। इसी तरह वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो एग्जैक्ट कही है कि वो अपने पब्लिक को बच्चों की तरह प्यार करते हैं, अपनी बेटियों को बेटी समझ के उनके सर पे हाथ रखते हैं। हम लोग जो हैं हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफिन बन चुके हैं, हमें अपनी कंट्री का कुछ पता नहीं है। हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, कैसे गिराना है, इसकी हुकूमत कैसे गिरानी है, बिल्कुल ऐसे हम लेग पुलिंग करते करते हम 5 साल गुजार लेते हैं, बल्कि 5 साल भी कभी किसी पीएम को मुकम्मल नहीं होने दिए। वहाँ हमें शर्म आनी चाहिए, 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। ना लेग पुलिंग हुई है, ना उनके अगेंस्ट कोई एहतजाज हुए, ना कोई ऐसे स्ट्राइक हुई है। क्या रीजन है कि हमेशा से उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं कहूँ इंडिया और पाकिस्तान के वजीर आजम की अगर कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, तो मोदी साहब कहाँ स्टैंड करते हैं और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कहाँ स्टैंड करते हैं? सर मैं मैडम देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, यहाँ आपको भी पता है 2-3 साल बाद हमारा पीएम चेंज हो जाता है। अगर किसी हम बाइक लेते हैं, अगर वो सही चलती रहेगी, हमें क्या जरूरत है चेंज करने की? तभी करेंगे जब खराब होगी। हमारा कोई भी पीएम इस काबिल ही नहीं होता है कि वो हमारी कंट्री को लेकर चल सके, कोई ना कोई उसके खिलाफ मतलब केस बन जाता है, और हम नहीं बनाते इंटरनेशनल लेवल पे, वो उनका नाम आ जाता है चोरों के अंदर, ठीक है। फिर हम उनको, तो हमारे जो मोदी जी है ना, मेरे जुबान पे हमारे क्यों चढ़ा हुआ है कि यार हमें खुशी होती है, हमारा हमसाया मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है, ये शुक्र है कि हमें उन्होंने कभी छेड़ा नहीं है, ठीक है। अपने ध्यान काम करें, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अपनी पब्लिक के लिए जो कुछ कर रहे हैं ना। एक वक्त था कि लोग जो ना, ये हमारा मुल्क लहदा हुआ था, आजादी हुई थी ना, सारे भाग के पाकिस्तान आ गए थे। आज कुछ दिनों के लिए बॉर्डर ओपन कर दिया जाए, सब ने वापिस चले जाना, उन्होंने कहना इंडिया ही ठीक है हमारे लिए, जहाँ कम से कम हमारी रोटी पूरी हो रही है, हमारी इज्जत है। उनकी देखे पूरी दुनिया में इज्जत है। आज वो टॉप 4th मुल्क में इंटर हो चुके हैं, ठीक है। चाहे आप उनको चांद पे उतरते हुए मुल्कों में देख लें, क्रिकेट में देख लें, या उनकी इकोनॉमी देख लें, हर लिहाज से वो टॉप 5 के अंदर इंटर है, और हम टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं। सही है। अगर मोदी साहब की बात करें पाकिस्तान को लेके, तो पाकिस्तान का यही हर छोटा बड़ा मीडिया या पर्सन कहते हैं कि अगर मोदी है ना तो फिर पाकिस्तान और इंडिया
की दोस्ती नहीं हो सकती, और पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए वो हमेशा सेंटेंस यूज करते हैं, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। नहीं, ये चीज क्या है? देखें, ये गलत बात है। मैं तो ये कहता हूँ, जब से मोदी की हुकूमत आई है ना, कश्मीर बहुत पुरअमन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, हाँ। मेरे बहुत सारे मतलब कि हम जब यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो कश्मीर वाले लोग तो कहते हैं हम खुश हैं। ये तो हमारे दिलों में, दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि वो बहुत तंग है, वो कैद में, वो ऐसे वो वैसे, वो तो हैप्पी है, ठीक है। तो मुझे भी ये लगता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है ना कि वो दूर से देखे तो बड़े वो अजीम शख्सियत लगती है, मुझे ये लगता है उनका चेहरा भी मासूमियत वाला, ठीक है। वो किसी के साथ भी फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, जंग हो या कोई भी ऐसा काम हो कि हम कहें जी मोदी ने आगाज कर दिया, ऐसा नहीं है। उनके होते हुए दोस्ती भी हो सकती है, उनके होते हुए हम अच्छी तजारत भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अपना एटीट्यूड ही खत्म होता ना, हमारा एटीट्यूड खत्म होता। हम कहते हैं ना कि ना वो कहता है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना हमारे पल्ले कुछ है, ना हम उनको फायदा दे सकते हैं, और तो ना हम लेना चाहते हैं। मतलब कि हमें तो चाहिए उनसे फायदा लें। सही बात है, इतनी बड़ी मार्केट है, हम फायदा भी नहीं ले रहे और दे तो हम सकते नहीं नरेंद्र हैं। मोदी की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो पाकिस्तान की जो कौम है, या हमारे लिए तो वो हमेशा से हिटलर रहा भाई। अच्छा, मतलब जब भाई बात आती ना इंडिया की इज्जत पे, तो भाई वो उधर नहीं किसी को हाथ डालने देता, ठीक है। जबरदस्त। तो बाकी बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, उसने बोला कि पाकिस्तान के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताओ। भाई उसको हेल्प चाहिए ही नहीं, वो कम है क्या किसी से? अच्छा, बताए ना। अभी नंदन का पता था ना, जो जब चाय पिलाई थी उसको, तो वो फिर वापस भी हम लोग ये कह के उनको टाल मटोल कर देते हैं कि भाई साहब कि हमने जी चाय कहो और आगे गुजर जाओ। 1971 वाली हम लोग बात नहीं करते हैं। उनका 1971 का जवाब देने के लिए हम लोग सिर्फ चाय का जो हवाला देते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि भाई साहब तुम्हारे घर में आए बंदे को वो कैसे लेके गया है। और कह रहे थे कि ये सरफराज जो है, अयाज सरफराज की पार्लियामेंट की वीडियो है कि इतना प्रेशर आया हुआ था, हम अभिनंदन को रख ही नहीं सकते थे कि 9 बजे से पहले रिलीज करना, वरना इंडियन आर्मी आ जाएगी। एक बंदे को लेने के लिए पूरी इंडियन आर्मी हमला करने वाली बात है, ये बड़ी बात है भाई के मतलब यार हम लोग तो खुद हैरान हो गए थे कि यार एक बंदा पाकिस्तान में आया, ठीक है। अभी वो पाकिस्तान के हवाले है, ठीक है, तो वो कैसे उसको छोड़ा जा सकता है यार? वैसे तो भाई पाकिस्तान ने वीजा बंद किया हुआ, इंडिया वालों ने पाकिस्तान का वीजा बंद किया हुआ है, आ जा सकते नहीं है। और एक बंदा भाई तुम्हारा आ गया तो तुम कैसे उसको जाने दे रहे हो भाई साहब? उन्होंने निकलवाया अपने दम पे निकलवाया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ना छोड़ेंगे तो भाई ऊपर से ड्रोन आएंगे, ये आएगा वो आएगा, समझ रही है ना? समझ रही हूँ, मुझे उठा के ना भी ले जाए। है गाइस, आप लोगों ने वीडियो देखा, कैसा लगा? आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यार ज़रूर बताना। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट ज़रूर करना। वीडियो में जो भाई ने बोला है कि अगर बॉर्डर खुल जाए तो पाकिस्तान की आधी जनता हिंदुस्तान चली जाएगी, ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि पाकिस्तान में इतनी गरीबी, आटा महंगा हो गया, डाटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, इतना कुछ होने के बाद पाकिस्तान में कोई रुकना पसंद नहीं करेगा यार। क्योंकि वहाँ एक महीने का 20-30 हज़ार रुपये लाइट बिल आ रहा भाई। अपने हिंदुस्तान में 2000-1500 रुपये लाइट बिल आता है, वहाँ 20-25 हज़ार रुपये लाइट बिल आ रहा है। कौन करेगा, कैसे करेगा? 20-25 हज़ार का तो आदमी काम कर पा रहा है, वो लाइट बिल ही भरेगा। तो वहाँ बहुत मुश्किल से आदमी रुका है, मजबूरी में जो फंसा हुआ वही आदमी रुका हुआ है। और हम भाई यार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बॉर्डर हमें नहीं खोलना है, क्योंकि हमें आप लोग वही हो तभी अच्छा है। आप लोग यहाँ आओगे, खाली मुझे दंगा करोगे, साला ये करोगे वो करोगे, ये हमें नहीं चाहिए। आप आपके यहाँ खुश, हम अपने यहाँ खुश। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के कमाल की वीडियो लाते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्या सोच रहे हो? सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें सीधा सबसे पहले आप देखो। हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।